Good morning, everyone, and welcome to the Student Orientation Session Series organized by Delhi Metropolitan Education. I am your host for this session, Rashri, and it is my honor to welcome you back for the fourth session in this series. Delhi Metropolitan Education, DME, is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication, and it is recognized as a school focused on growth of its faculties and students in academic and co-curricular activities. With this, it is my pleasure to welcome you all once again, the batch of 2025, and the faculties and dignitaries present here. Today, we are joined by Mr. Nishant Shekhar, Senior Assistant Editor at the Indian Express. Please welcome him with a huge round of applause. I would like to invite Dr. Parul Mehra, Head DME Media School, and Ms. Garima Jain to please felicitate our guest. I will also request the faculties to come in for photos. Without any further ado, I invite Mr. Nishant Shekhar to the stage. With a career spanning 18 years, Mr. Shekhar has done it all. From ground reporting and covering elections, he has mastered the craft of delivering information with masterful storytelling. He has found an audience in the digital space through his Instagram handle, Mastikor Shekhar, which sparks conversation within the industry. He is admired and he is respected and he is here with us today. So please welcome him with a huge round of applause. So how are कैसे हो सब लोग? किसी के घर में पानी वानी तो नहीं घुस गया? बहुत बारिश हो रही है. पानी घुसे मेरे को कॉल मत करना. तो रिमेंबर हम लोग जब छोटे थे स्कूल में थे तो कैसे स्कूल में वी वर टॉट राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर. हमारे लोकेलिटी में पानी भर गया है. अब दिल्ली आओ, गुड़गांव आओ, देखो एडिटर के घर में खुद ही पानी है. So yeah, that is the situation of editors now. So I started journalism in 2007. I started with a website called headlinesindia.com. उसके बाद I worked with Dainik Bhaskar, and then I switched to Times of India. I used to cover sports, and in 2014 I joined Indian Express as the senior copy editor, and then I was promoted as the senior assistant editor. Then I moved to India Today in 2023. So there I used to do a satirical show. That was the Saturday show. It used to come on Saturday, every Saturday on the YouTube channel of India Today. And yeah, that is all about me. And all the best, all of you. And if you have any question, just shoot it. See, things have changed quite a bit, okay? When I joined industry, journalism was different. Today it is quite different. पहले क्या होता था कि जनता के प्रॉब्लम्स होते थे, जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट को बुरा लगता था. अभी जनता के प्रॉब्लम्स होते हैं, जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते हैं, जनता को ही बुरा लग जाता है ना? सो अभी इफ़ आई स्टार्ट रिपोर्टिंग व्हाट इन्फ्लेशन, हमारे घर में अंकल जी बोल देंगे नहीं नहीं कोई इन्फ्लेशन नहीं है, तुम्हारा सैलरी कम है, मोदी जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, तो वो सब होता है. तो जर्नलिज्म हैज चेंज क्वाइट अ लॉट. तो और अभी आप लोग के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी चीज़ों को बदलने की. इनफैक्ट क्योंकि द वे थिंग्स आर गोइंग in media, it's quite disappointing. In fact, I was discussing with Parul abhi कि things have changed quite a lot. The way TV industry is functioning, it's very tragic, it's very shocking. और आप लोग के ऊपर responsibilities होगी. If you have come to this industry, and I don't know what is the purpose of you, but what actually attracted toward this journalism industry? Can anyone tell me why you want to become a journalist? Anyone?
What was the idea? Why did you choose this like profession? क्या देखा था बताओ? Sir, cause I'm into debating and news reporting, so मुझे इसमें इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है और इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने BAJMC लिया. एक्सपर्टीज है. एक्सपर्टीज मत बोलो, अभी तो एक्सपर्टीज कहाँ, अभी तो एक्सपर्ट बनना है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो यू आर जस्ट अ स्टूडेंट. एनीवन एल्स? क्या सोच करके बताओ मैम, आप बताओ. व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट? कंटेंट करना है. व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट? हाँ. What is news? What is news? Anybody? What? Info about the surrounding. तो आज का क्या है न्यूज़? आज का मेजर न्यूज़ क्या है? हेलो सर. Yes. मैंने आज सुबह मॉर्निंग में एक न्यूज़ पढ़ा था. फर्स्ट हेडलाइन कि ट्रम्प ने कहा है कि अगर इंडिया रूस से पेट्रोल खरीदेगा तो उनके संबंध खराब हो सकते हैं. और टू इसलिए इसलिए आज बिहार बंद भी है. इसलिए आज बिहार बंद है? हाँ, बिहार अच्छा. बंद भी करवाया जाएगा. ओके, ठीक है. देखो कई बार क्या होता है ना कि पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि पॉलिटिकल न्यूज़ ही न्यूज़ है. क्या मोदी बोल रहे हैं, क्या राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्या सोनिया गांधी बोल रही है, क्या योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, वही न्यूज़ है. एज अ जर्नलिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टोरी दैट मैटर्स एंड दैट शुड मेक चेंज, वो आपको फॉलो करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अभी दिस कंटेंट क्रिएशन जैसे आपने बोला ना, सब लोग एक ही ट्रेंड को फॉलो करते रहते हैं. जैसे कंटेंट बनाना है मुझे, आज कुछ हो गया, मोदी ने कुछ बोला, चलो जल्दी से एक वीडियो बना देते हैं. मोदी ने ये बोला, उसके ऊपर ये रिएक्शन आ गया, ऑपोजिशन ने ये बोल दिया एंड पब्लिश कर दिया. बट दैट एक्चुअली इज बीइंग डन बाय 1000 अदर पीपल. तो व्हाट डिफरेंस इज बिटवीन देयर कंटेंट एंड योर कंटेंट? कुछ तो डिफरेंट सोचते होगे ना. हाँ. What is the biggest issue of your locality? आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में कहाँ रहते हो? साउथ दिल्ली में? साउथ ईस्ट दिल्ली में. वहाँ के क्या इश्यूज हैं, आप ये बताओ मुझे. बेसिकली रोड्स हाँ. बहुत गंदे. थोड़ी बारिश हुई नहीं, मतलब बाढ़ आ गया. अभी तो जैसे मैं घर जाता हूँ तो एक मतलब डिवाइडर है जो यमुना को डिवाइड करता है, मतलब पूरा यमुना का पानी आ गया है. वहाँ के लोकल्स उठ के अब रोड के इस साइड आ गए. हाँ. सारे एनिमल्स सब रोड में घूम रहे हैं, मतलब बहुत ट्रैफिक, बहुत इशू है इसका. अच्छा, आपको लगता है कि आप जो इशू बता रहे हो वो कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी मीडिया हाउस फॉलो कर रहा है, आपके इशू को हाईलाइट कर रहा है? नहीं. दैट इज द थिंग. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. न्यूज़ दैट एक्चुअली मैटर्स. पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, वो आपको ANI के फीड पे, PTI के फीड पे मिल जाएगा. वो सबके पास अवेलेबल. आप क्या न्यूज़ करना चाहते हो? दैट इज द थिंग. व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़ यू वांट टू डू? बताओ. जैसे आई एम गिविंग यू एग्जांपल. अभी रिसेंटली, हाउ मेनी ऑफ यू नो द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इनटू आर्मी? आर्मी में रिक्रूट होने के लिए क्या प्रोसेस होता है? और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद आप रिक्रूट होते हो, है ना, आपका कमिश्निंग हो जाता है. नाउ टेल मी, आप जब इस ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू जाते हो, ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू जब भी कोई कैडेट जाता है, अगर उसको कोई ऐसी इंजरी हो गई, उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, उसका हाथ काम करना बंद हो गया, लकवा मार दिया या कुछ भी, उसके बाद क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है. Recent past में if any story has actually made an impact, this is the story that has been done by Amrita Nayak in Indian Express. और वो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई भी कैडेट परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, ऐसी इंजरी जो कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है, या फिर आप हमेशा के लिए बेड रिडन हो गए, पहले तो आर्मी आपको डिस्चार्ज कर देती है आर्मी से.
उसके बाद क्या होता है कि आपको वो एक्स सर्विसमैन जो एक टैग होता है वो भी नहीं मिलता आपको गवर्नमेंट 40,000 का एक्स ग्रेशिया देती है, लेकिन वो एक्स ग्रेशिया आपके पूरे इलाज में ही ख़त्म हो जाता है। नाउ अगर इफ़ यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट और आप एनडीए गए और आप डिसेबल होकर डिस्चार्ज हो गए, अब नाउ द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू लाइज ऑन योर पेरेंट्स शोल्डर। अब पेरेंट्स अगर नहीं कमा रहे हैं और उनका बच्चा भी है वो डिसेबल्ड है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो आप सोचो उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ता होगा। सो दिस स्टोरी वॉज डन बाई रिसेंटली बाई इंडियन एक्सप्रेस, और उसमें ये इशू रेज किया गया कि ये जैसे जितने भी कैडेट्स हैं जो कि परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं उनको एक्स सर्विसमैन का टैग दो, जिससे कि उन्हें वो बेनिफिट्स मिले जो कि एक्स सर्विसमैन को मिलती है, और वो बेनिफिट जैसे कि उसको वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जब वो बेनिफिट उनको मिलती है तो जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो 40,000 का मिलता है वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने में वो अमाउंट यूज़ हो सकता है। उस स्टोरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस इशू को कॉग्निजेंस में लिया और रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया, जैसा कि दिस मैडम, व्हाट्स योर नेम मैम? Shubhangi. Please give a round of applause for Shubhangi. She's very well aware actually. So this is what journalism does. आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना है. You have to make an impact with your story. That's what I said earlier. कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग को ही जर्नलिज्म समझते हैं कि what any politician or any what XYZ has said उसको रिपोर्ट कर दो, that is journalism. That is not. In fact, you have to do stories that actually matters. That is the thing. Any other question? एक पोएट्री सुनाओ हम लोग को. We will decide if the poetry is good or not. चलो, go for it. The worlds lie where I exist. I see them all, they laugh and cry. I tell myself it's all a lie. Filled with colors and bright lies. It's all a moment and then it ends. We all come and then leave by. No one holds our hand all time. We walk alone and then go by. We walk alone and then escape to whom our heart finds by. Yes, sir. Yes, sir. Nice. Please. So when you make a video on this poetry, how do you make it? You read it or you express yourself? Sir, basically I try to rhyme it and like speak it very poetic way, like in a very creative way. तो आपने अभी तो बोला नहीं, आपने तो पढ़ दिया. If you are a poet, Yes, sir. आपको you should know how to express yourself. Yes, sir. आप जब रील बनाते हो, कोई भी कंटेंट बनाते हो, इट हैज़ टू बी इंगेजिंग एक्चुअली, Yes, sir. है ना? इट हैज़ टू बी पंची. इंस्टाग्राम पे अटेंशन स्पैन कितना है, किसी को पता है? व्हाट इज द अटेंशन स्पैन? 7 to 8 आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया. 3 seconds. 3 seconds. 3 seconds में आपको ऑडियंस को हिट करना है ना? सो योर इंट्रो हैज़ टू बी दैट गुड. Yes, sir. Your expression, the way you communicate, that has to be top notch. तो अच्छा चलेगा. बट इट्स नॉट गारंटी कि हो ही जाएगा. बहुत लोग बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं लेकिन नहीं चलता है. समटाइम्स वी आर विक्टिम ऑफ एल्गोरिदम ऑल्सो. ठीक है, बट फॉलो द स्टेप प्रॉपरली. ठीक है, मेक इट मोर इंगेजिंग. आई एम श्योर यू विल एक्सेल. Thank you, sir. या एनीथिंग एल्स? या सर, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप एक मीमर भी हो, कॉमेडियन भी हो, और आप बहुत क्रिएटिव भी करते हो. आप इंटरटेनमेंट लाइन में भी हो, लाइक नसरुद्दीन शाह वाला मैंने आपका रील देखा था, बहुत अच्छा था वो. थैंक यू. सो मतलब बाकी किसी सीनियर से बात करो या ऐसे लोगों से बात करो तो बोलते हैं कि ज़्यादातर अगर हम लोग 2 नाव पे सवार रहेंगे तो डूबेंगे ही डूबेंगे. लाइक एक लाइन पे फोकस करो. लाइक जर्नलिस्ट कैंट बी कॉमेडियन. अच्छा, सीरियस बनो, अपना फेशियल एक्सप्रेशन सीरियस रखो, हंसते रहते हो इतना, मतलब कैसे हल्का फुल्का, मतलब पर्सनालिटी मत रखो, हैवी करो अपने आप को. किसने बोला ये सब? अब बोला तो बहुत लोगों ने मुझे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब सब कॉमेडियंस और या मीमर्स और जर्नलिस्ट को अलग ही, मतलब एकदम डिफरेंट रखते हैं. पर आप तो अपने रील्स में अलग ही, लाइक शशि थरूर वाला भी रील. वो बेसिकली क्या है ना, दैट इज़ अ कमेंट्री एक्चुअली. ठीक है, शशि थरूर का जो आपने बोला वो बेसिकली एक सटायर का तरीका है. ठीक है, वॉट एवर इज हैपनिंग उसको आप कॉमिकल वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हो. ऑफकोर्स जर्नलिस्ट कैन बी सटायरिस्ट ना, है ना?
हाउ मेनी ऑफ यू वॉच न्यूज़ लॉन्ड्री? न्यूज़ लॉन्ड्री में एक शो आता है न्यूसेंस, मनीषा पांडे है ना? देखा है वो कैसे प्रेजेंट करती है? शी इज़ नॉट सीरियस, वो इतना सीरियस फेस बना के नहीं बोलती है, वो काफ़ी अच्छे कॉमिक वे में ही बोलती है। और एडिटिंग आप देखो उस प्रोग्राम की, उसमें फ़न है, उसमें मसाला है और मैसेज भी कन्वे होता है। सो इट्स नॉट कि आप चेहरा सीरियस बना करके, इनफैक्ट या आई मेड वन रील वन डे कि ये जो एंकर्स हैं उनका जो प्रोमो होता है वो एवरी टाइम, मतलब व्हाट इज दिस, है ना? खेत खलियारों से फिर एक म्यूजिक आए टुन 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 खेल के मैदानों तक। व्हाई डू यू हैव टू डू ऑल दिस? न्यूज़ बताओ ठीक से, ठीक है ना? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो बताओ। न्यूज़ बताने में ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता है, बकवास करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है? सो सिचुएशन ही वैसी फ़नी है, तो हम लोग भी फ़नी हो गए। हम लोग को ही बताया जाता था कि यू हैव टू बी वेरी सीरियस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप कॉमेडिक वे में भी आप चीज़ों को बता सकते हो। सब लोग मतलब एग्जांपल देते हैं कि लैटिन में वो आ गया था बाइसेप, इतना मतलब कहाँ कौन आ गया था? लैटिन में बाइसेप नहीं आया था वो। अच्छा, हाँ। तो उसने मतलब बहुत वियर्ड तरीके से हाँ। कॉमेडियन मतलब ऐसे अरे अभी तो आप represent न्यूज़ किया एंकर्स को देखो कि वो खुद कॉमेडियन लगते हैं यार। मैक्सिमम न्यूज़ एंकर्स को आप देखो वो खुद कॉमेडियन है। द वे लाइक आई डो नॉट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन आप बहुत सारे चैनल्स को देखो ना, उस पे जो मीम्स बनते हैं, मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, ये क्या है? you do not have to do all this thing ना। you can tell your serious news properly, you don't have to do all this। आप देखो न्यूज़ डिबेट में क्या होता है। हम लोगों ने इनफैक्ट जब गरिमा 2004 में आपने बोला ना आप 6 में आए थे, मैं भी उसी अराउंड 2006-7 में ही आया था। उस वक्त थिंग्स वर क्वाइट, उस वक्त अच्छा टीवी वाज इवॉल्विंग, प्राइवेट चैनल्स बहुत सारे आ रहे थे, तो उस वक्त भी न्यूज़ के नाम पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी होने लगी थी। क्या एलियंस भी दूध पीते हैं? बंदरों का आतंक, है ना? उर्मिला के चेहरे में झुर्रियां आ गई, इस तरह की चीज। बिकॉज ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव दैट मच कंटेंट टू प्रेजेंट टू द ऑडियंस, सो यू क्रिएट कंटेंट अननेसेसरीली। और वो कंटेंट का टाइम वो न्यूज़ का टाइम था। आप न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ एंड कंटेंट आर डिफरेंट। इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी कंटेंट बना सकते हो, न्यूज़ का देयर हैज़ टू बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो हम लोग उस वक्त भी थे, तो उस वक्त ऐसा ही लगता था कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर वो बहुत सारे शोज आ गए, क्राइम शोज, सनसनी, सन्नाटे को चीरती सनसनी, ये कर देगी वो कर देगी, चैन से सुना है तो जाग जाओ। ये सारे शोज उस वक्त स्टार्ट हुए थे और टीआरपी गेन करते थे, लेकिन आज के डेट में क्या है, वो भूल गए सब, उसको हो गया खत्म, है ना? तो मजाक तो अभी तो आप देखो ना, वो जितने भी लोग आपको बोलते हो ना कि सीरियस होकर के आपको जर्नलिज्म करना है, नहीं जर्नलिज्म इज अ सीरियस थिंग, बट यू डू नॉट हैव टू लुक सीरियस। वो अलग है, वो आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, आप कैजुअल वे में भी बात कर सकते हो। और एंकर्स को देखो वो कैसे बात करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना सब लोग? मुझे अभी लग रहा है सिर्फ वही पढ़ती है, शुभांगी ना? हाँ, सब पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? पढ़ा करो, ठीक है? और टाइम्स ऑफ इंडिया मत पढ़ा करो। अभी वी वर डिस्कसिंग दैट ओनली। हम लोग भी जब आए थे इंडस्ट्री में, तो हम लोग को हमारे एडिटर्स बोलते थे टाइम्स ऑफ इंडिया मत पढ़ो, वो सिर्फ दिल्ली टाइम्स में ग्लैमर और पेज 3 चीज़ें चलते रहती है और दुनिया भर के एड्स होते हैं। इफ़ यू वांट टू रीड गुड स्ट्रॉन्ग न्यूज़, हिंदू पढ़ो, एक्सप्रेस पढ़ो, इवन अब तो खैर डिजिटल में स्पेस बहुत ज़्यादा है, द प्रिंट पढ़ो, स्क्रोल पढ़ो, इवन फॉलो न्यूज़ लॉन्ड्री ऑल्सो। तो ये सब पढ़ा करो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सटायरिकल उसमें प्रेजेंट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना न्यूज़, बट आजकल का जो मीडिया लैंडस्केप है उसमें सटायर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सेंसरशिप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बहुत सारे सटायरिकल पेजेस को शट डाउन कर दिया गया था, कॉमिक स्ट्रिप्स को शट डाउन कर दिया गया। सो हाउ डू यू बैलेंस दैट? हाउ डू यू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन व्हाइल मेकिंग श्योर दैट आपका कंटेंट डज नॉट गेट सेंसर्ड एंड शट डाउन? आई ट्राइड नॉट टू हिट बिलो द बेल्ट। ये मेरे को फॉलो करना होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द पर्सन हु एक्चुअली पुल्स मी, दैट इज माई वाइफ। वो कहती है तुम ना जेल जाओगे। कुछ भी, लाइक द फर्स्ट वीडियो दैट आई मेड इन 2023 एंड दैट वेंट वायरल, उसमें देयर वाज वन न्यूज़ रूम का ही सीन था। बेसिकली सिंस मैं न्यूज़ रूम में रहता हूँ, तो आई नो द न्यूज़ रूम पॉलिटिक्स, द न्यूज़ रूम वाइब, द एटमॉस्फेयर, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। सो कोई अगर पॉलिटिशियन बोल रहा है, समबडी इज़ लाइक वेरी टायर्ड ऑफ हिज वर्क एंड इज़ लाइक बंद करो यार इसको, ये हो। तो उस तरह के सीन्स थे। तो उसमें वो था कि मोदी इज़ गिविंग अ स्पीच एंड वन कलीग इज सेइंग कह रहे यार बंद करो इसका भाषण। अब द मोमेंट यू एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन, लेकिन इफ़ यू मेक अ वीडियो ऑन दिस और फिर आप उसको अपलोड करते हो और मोदी के फैंस अगर देख लेते हैं
कि अरे इन्होंने तो उनके बारे में ऐसे बोल दिया, चलो इनको ट्रोल करो। पहले तो ट्रोल करते हैं, गाली देते हैं। मेरे भी उसमें इनबॉक्स में खूब सारे हेट मैसेजेस आते हैं। सो हाँ, आई ट्राई नॉट टू हिट बिलो द बेल्ट, और मैं बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी कम करता हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब ऐसा लगता है कि नहीं वो एक कैरेक्टर का डिमांड है, तब मैं देता हूँ। अदरवाइज मेरे साथ अभी तक बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम हुआ नहीं है। द फर्स्ट रील दैट आई मैंशन, उसको interestingly, politicians from both the parties actually retweeted it. So like आम आदमी पार्टी से भी लोग उसको retweet कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी ने भी retweet कर दिया, एंड शाजिया इल्मी ने BJP के उन्होंने भी retweet कर दिया. So basically you have to strike that balance, है ना, कि कोई बहुत ज़्यादा, अब अभी क्या है ना कि बहुत सारे, if I don't know, जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फॉर्मर जर्नलिस्ट थे और अब यूट्यूबर्स बन गए हैं. द प्रॉब्लम इज़ कि they have to like make content for their subscriber. अब subscribers भी अलग अलग तरीके के हैं, है ना. रवीश कुमार के सब्सक्राइबर डिफरेंट होंगे, ठीक है. ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर डिफरेंट होंगे. नीतीश राजपूत के सब्सक्राइबर्स डिफरेंट होंगे. उनकी थिंकिंग, उनको जैसा कंटेंट चाहिए. अब रवीश कुमार अगर एक भी वीडियो में नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देंगे, he will lose half of his subscribers. तो ये समटाइम्स जैसे क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये जर्नलिस्ट हैं या जो मीडिया हाउसेज है वो एड कंपनीज के गुलाम हो जाते हैं. आपको एड अगर इस गवर्नमेंट से मिल रही है या कंपनी से मिल रही है तो फिर आप उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलोगे. इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, क्योंकि आप लिगेसी मीडिया को देखोगे पहले से ही तो वो एड्स पे ही चलती है और गवर्नमेंट एड्स देते थे. बट यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट. आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल वो आपको रखना पड़ेगा. और जैसे ये दिस रामनाथ गोयनका का नाम किसने किसने सुना है? किसी ने नहीं सुना है? दैट इज अ वेरी बैड थिंग. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस. इफ यू गाइज आर कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन, रामनाथ गोयनका को कैसे नहीं पता आप लोग को? किसी ने भी सुना है रामनाथ गोयनका का नाम? कौन है? इंडिया में जर्नलिज्म का जो सबसे टॉप नॉस्ट अवार्ड है, रामनाथ गोयनका अवार्ड, वो उनके नाम पे हो. और रामनाथ गोयनका वाज द एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. गुरु मूवी किसी ने देखी है? अभिषेक बच्चन की किसी ने देखी है? देखी है. मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर याद है? किसी ने देखी है? अरे आपने तो हाथ उठाया था, बोलो. भूल गया हो. अच्छा, या एग्जैक्टली. Yeah, I forgot that I'm interacting with Gen Z kids. So, okay, so Ramnath Goenka was the editor of Indian Express और one of the co-founders also. और उनके नाम पे इंडिया में जो सबसे बड़ा जर्नलिज्म अवार्ड होता है, रामनाथ गोयनका अवार्ड, उनके नाम पे है. और हाँ, मैं भूल गया मैं क्या, what we were discussing, लेगेसी मीडिया. हाँ, सो अब देखो, अब जैसे इंडियन एक्सप्रेस भी था, वो भी गवर्नमेंट एड्स पे चलती थी और प्राइवेट कंपनीज भी उनको ऐड दे रही है. लेकिन यू हैव टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड योर प्रोफेशन कि अगर गवर्नमेंट से भी ऐड ले रहे हैं, लेकिन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू गवर्नमेंट इफ दे आर रॉन्ग. तो वो करते थे. अभी क्या है कि आप एड्स ले रहे हो और उसके बाद आप सवाल ही पूछना बंद कर रहे हो, तो वो तो गड़बड़ है ना. या तो आप अपने एड गिवर्स के गुलाम बन जाओ, या फिर आप अपने सब्सक्राइबर्स के गुलाम बन जाओ. कि अब चूंकि मेरे सब्सक्राइबर लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल. मैंने 2018-19 में रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड मिला था, ठीक है. सो उस वक्त आई वॉज विथ एक्सप्रेस और मैंने रवीश कुमार का इंटरव्यू किया बिकॉज ही गॉट द अवार्ड. उसके बाद करीब 200-300 फॉलोअर्स मेरे बढ़ गए एंड मैक्सिमम वर लाइक and maximum were from some one particular community only. अब I will not name the community, ठीक है. Are you getting my point? ठीक है. तो एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट किस तरीके की जर्नलिज्म कर रहा है ना, उसके सब्सक्राइबर भी वैसे ही रहेंगे, ठीक है. अगर मैं आज सिर्फ मोदी का गुणगान करने लगूँ या राहुल गांधी का गुणगान करने लगूँ, तो एक तरीके के सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे, है ना. और फिर आप उन सब्सक्राइबर्स के भी गुलाम हो जाते हो. सो यू हैव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस. वो करना पड़ेगा आपको कि मैं किसी एक आइडियोलॉजी की तरफ बंद के ना रह जाऊं. व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड दैट. दैट इज द थिंग.
Anything else? So why is this? I have seen that in Indian Express, the editorial pages are very tough to understand. Like whenever I open, I have to take my phone, I have to take my laptop to open Chat GPT and Google, and then I have to read what is happening, the business news and all. I am so hard. But that is the simplest right. editorial. No, I have read the speaking tree of Times of India and the editorial pages of it. Yeah. It is very simple, very masala, but here it is very very educative, but Informative, it's very hard to try to understand on yourself. Like I have to try with Chat GPT, and the word meanings are so difficult. So why? See, to understand editorial, you have to understand the news first. अब सपोज कि जीएसटी स्लैब रेट के चेंज पे कोई एडिटोरियल है एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द न्यूज एक्चुअली, तुमको न्यूज अगर नहीं पता तो तुमको एडिटोरियल भी नहीं समझ में आएगा. यू गॉट माई पॉइंट? समझा? तो यू शुड नो द न्यूज फर्स्ट. अगर तुमको लगे कि मैं सीधे एडिटोरियल पेज पर जो एडिटोरियल पढ़ लूँ तो वो नहीं समझ में आएगा. यू नीड टू नो द न्यूज फर्स्ट, then you read the editorial and then you understand what actually it is saying. So editorial basically gives you a perspective about news. ठीक है? So it's the opinion of the editor. Editors, yeah, of the newspaper. Of the newspaper. That is the stand of the newspaper on any particular issue. वो है. जैसे इमरजेंसी का, I don't know, have you heard about the fact कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल पेज ब्लैंक छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा, सुना होगा. That was a kind of protest. That was a way of protesting. कि तुमने मेरी बोलने की आज़ादी को बंद किया, मैं नहीं लिखूंगा इसके ऊपर. And that actually conveys message to international media also कि यहाँ पे लिखने की आज़ादी को ही बंद कर दिया गया. तो वो है, that is the thing. But it's not very difficult यार. Indian Express का तो बहुत simple होता है. They have the simplest language. नहीं, they have very simplest language in fact. I don't know how you are saying this. Anyone else? हेलो सर. What's your name? मैं आंचल झा. आंचल झा. मैंने आपका बायो चेक किया था, उसमें हाँ के दरभंगा से छे. हाँ हम दरभंगा से छिए. हम बुझ गेल रहिए अहाँ आबे वाला छिए, ताहि दुआरे हम एकटा पोयम लिखने छिए अहाँ ले. अच्छा. ता मतलब अहूँ बिहारी छिए, हमहूँ बिहारी, ता दूटा बिहारी सब पर भारी. नहीं मैं पटना से हूँ. हाँ Yeah. मतलब ये कि दो बिहारी खड़े हैं ये. हाँ, okay. हाँ तो From the United States of Bihar. हाँ जी. मुझे पोयम लिखना, कविता लिखना बहुत पसंद है और मैं लिखती भी हूँ. सुनाइए. तो मैंने बिहार पे लिखा था. अच्छा. कि हाँ मैं बिहारी हूँ, कि हाँ हम बिहारी हैं. मैं नहीं, मैं को हम बोलते हैं, काहे कि हम बिहारी हैं. हाँ हम बिहारी हैं. मैं को मैं नहीं, हम बोलते हैं, काहे कि हम बिहारी हैं. हम BTS के फैन तो नहीं, काहे कि हम भोले के पुजारी हैं. काहे कि बबुआ हाँ हम बिहारी हैं. पिज़्ज़ा बर्गर तो समझ में नहीं आता, कि पिज़्ज़ा बर्गर तो समझ में नहीं आता. हम तो लिट्टी चोखा के प्रेमी हैं, काहे कि हम बिहारी हैं. क्या समझे? हाँ हम बिहारी हैं. हिप हॉप, पॉप सॉन्ग, ये सब तो समझ नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ का जो झिझिया डांस है, यही तो एक, इसी के तो हम प्रेमी हैं. काहे कि हम बिहारी हैं. हाँ बबुआ हम बिहारी हैं. अब बात आती है BTS वगैरह की. लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाई बिहार क्या है. बिहार में, बिहार ने हमें इतिहास दिया, बिहार ने हमें पहचान दिया, बिहार ने हमें आन बान शान दिया. तो काहे नहीं गाए हम बिहार के गुणगान. अब लोग बोलते हैं कि बिहारी है, इलिटरेट है, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, कपड़े पहनना नहीं आता. बिहार ने हमें वो सब कुछ दिया जो आज लोग बोलते हैं ना, बिहारी को एक ऐसे फिंगर करके, अरे बिहारी है साइड करो, रिडिक्यूल कर. हाँ साइड करो, बिहारी है बिहारी है. वो बिहारी नहीं है. बिहारी एक आन है, बिहारी एक शान है, और बिहारी हमारा ही अभिमान है. काहे कि मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं, काहे कि हम बिहारी हैं. जी हाँ हम बिहारी हैं. शुक्रिया. और कितने बिहारी हैं यहाँ? हाथ उठाइए. अच्छा, क्वाइट अ बिग नंबर. नाइस. ठीक है. How many Bengalis here?
1 2 Bengalis? Acha. So 2 Bengalis, quite a few Biharis, and how many from Kerala? Kerala, yeah. So media industry is being ruled by these people only. Bihari, Bengali, and Keralites. But हाँ, nice poem. And देखो उनको मैं अभी कुछ बोलने चाहता हूँ वो फ़ोन में बिजी हूँ. Yeah, I'm interacting with you only. So I'm not talking about how the poem was or something. लेकिन ये समझा आपने? The way she presented it. Okay? ठीक है ना? That makes the difference. ठीक है? कि whatever your thought is, you have to present it in a way that actually attracts audience to it. That is the thing. अच्छा पोएम था, थैंक्स था. और वो बहुत ज़्यादा ना वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहने की ज़रूरत नहीं कि बिहारी हैं ये वो सब. और ये भी नहीं कहना कि एक बिहारी 100 पर भारी, ये सब बकवास बातें हैं. ठीक है ना? मैं भी हूँ, मुझे ही पता है कि क्या होता है. बट वी आर वेरी टॉलरेंट इन फैक्ट एक्चुअली. अब अभी देखो ना, अभी ये एक मूवी अभी आई है परम सुंदरी. सब ने सुना होगा. देखो मूवी का नाम लेते ही सब जानते हैं. So, परम सुंदरी को लेके क्या कंट्रोवर्सी है ये बताओ, कौन बताएगा? रुको, तुमको नहीं देंगे चांस, अब किसी और को देंगे. बताओ, एनीवन? या व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ऑफ परम सुंदरी? जानवी कपूर ने जो रोल प्ले किया था सुंदरी का, तो वो जो जिस वे में बोलती है उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी उठी है कि असली जो मलयालम लोग हैं जो उधर के साउथ इंडियंस हैं वैसे नहीं बोलते हैं. तो उसको लेके सोशल मीडिया में भी बोला गया. बट ये साइड भी है कि मे बी फॉर द प्रमोशन ऑफ द मूवी वो ये कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता. नहीं, क्योंकि दूसरे वीडियो में ना जानवी कपूर बहुत अच्छे से लाइक फ्लुएंटली बोल रही थी. एंड इन द फिल्म उसे कंट्रोवर्शियली दिखाया गया कि जो साउथ इंडियन गर्ल्स होते हैं वो वैसे नारियल के पेड़ पे चढ़ जाते हैं. ऐसे लगा के बात करते हैं, बालों में गजरा पहनते हैं. तो नहीं, I was meeting my editor yesterday and he is also from Kerala. और he was like ये ऐसा नहीं होता कि सुबह सुबह हम लोग जाके नारियल के पेड़ पे चढ़ जाते हैं. और कोई पेड़ पे नहीं चढ़ता, नारियल खुद ही गिर जाता है. इतने नारियल के पेड़ है और नारियल पक्के गिर ही जाता है. बट या हाँ, who was from Kerala? This guy. You also from Kerala? अच्छा, and you also. आप बताओ क्या है कंट्रोवर्सी है परम सुंदरी का? एंड हाउ मच डू यू अग्री विद दिस ऑल द बैकलैश दैट दिस गर्ल इज फेसिंग, जानवी कपूर? जैसे कि वो मलयालम जो Accent. लोग बात करते हैं, Accent, एक्सेंट है, हाँ. वही प्रॉब्लम है उस मूवी का एक्चुअली. दैट इज द थिंग. वैसे बात नहीं करते कोई वैसे मलयाली. बात नहीं करते. नहीं, आप बिल्कुल भी एग्री करते हो ऐसे ही? या हाँ, कहाँ से खरीदा इतना बकवास डिक्शनरी? या हाँ, अच्छा. हाँ, बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग करते हैं. बॉलीवुड में स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है महमूद के ज़माने से. पड़ोसन मूवी किसी ने देखी है? वाह क्या बात है, आई लाइक्ड इट. चलो कोई तो जो पड़ोसन भी देखा है. पड़ोसन मूवी के लिए भी यही कंट्रोवर्सी थी. क्या कंट्रोवर्सी थी, किसी को पता है? उसमें जो महमूद का कैरेक्टर था ना, ही वाज द मद्रासी टीचर, मद्रासी म्यूजिक टीचर, एंड ही वाज आल्सो लाइक स्पीकिंग इन दैट वे ओनली. सर वो जिस वे में सिंग करते थे उसको लेके हुआ था कि इस तरह से नहीं गाते हैं. हाँ हाँ हाँ, वही है. सो नाउ अब देखो, अब मैं तुमको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ. व्हाई सेड बिहारीज आर वेरी टॉलरेंट. अब सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा है कि जानवी कपूर ने मलयाली एक्सेंट खराब बोला है, वो यू शुड हैव कास्ट सम मलयाली एक्टर्स ओनली. एक हम लोग बिहारी लोग को देखो, सुपर 30 में ऋतिक रोशन को कास्ट कर दिया. हमने कुछ नहीं बोला. कर दो भाई, और फ्री एम्प्लॉयमेंट दे दो उसको भी. तो वो है. हाँ, दैट इज़ अ थिंग. तो बहुत ज़्यादा मस्त हो जाया करो ये बिहारी ये सब ठीक है. हम लोग बहुत टॉलरेंट हैं. यहाँ हर समय रेसिज्म का झंडा लेके सब खड़े हो जाते हैं. नॉर्थ ईस्ट के लोग हमें बोल देते कि हमको ऐसे बोला जाता है, मोमोज बोला जाता है, चाइनीज़ बोला जाता है. ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी सेड, इट्स अ रॉन्ग थिंग टू से. लेकिन हम लोग तो सुनते ही आए हैं हमेशा से. अब जो बोल रहा है वो उनकी छोटी मानसिकता है, क्या बोल सकते हैं, है ना? दैट इज़ द थिंग. हाँ, टेल मी. सर जैसे इस मूवी में कंट्रोवर्सी है कि एक कन्नड़ बोलने वाले, साउथ इंडियन बोलने वाले एक्सेंट ऐसे नहीं होते. वैसे बिहारियों के साथ भी है कि तुम लोग हिंदी नहीं बोल सकते. नहीं, हिंदी तो बोल ही सकते हैं. द थिंग इज कि द लाइक हम लोगों में बोला जाता है कि नहीं तुम लोग हमारी तरह प्रॉपर नहीं बोल सकते हिंदी. और
मैंने इवन जब अपने दोस्तों को बताया कि हाँ मैं बिहार से, मैं मधुबनी से हूँ, हाँ। तो उन लोगों ने कहा नहीं तो बिहारी तो नहीं लगती। वो मेरे साथ भी होता था कि तुम बिहारी लगते नहीं हो, मतलब क्या मेरे को लिट्टी चोखा दिन भर थोड़ी खाना पड़ेगा बिहारी लगने के उसके लिए हमें अब थोड़ी ना गमछा लेके घूमना पड़ेगा या हाँ उस एग्जैक्टली कपड़े पहनने यही पड़ेंगे। स्टीरियोटाइपिंग की बात मैं कह रहा हूँ, जैसे बॉलीवुड भी करती। अब गमछा डाल दो, पान खिला दो, बिहारी बन गए। तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू पोर्ट्रे थिंग्स। यही है। और ऋतिक रोशन को अब जैसे देखो सुपर 30 में उसको बना दिया है बिहार का प्रोफेसर आनंद कुमार, वो कहीं से भी वो लग भी नहीं रहा है, एक्सेंट भी नहीं पकड़ पा रहा। और ये जो एक्चुअली क्या होता है कि जो डायलेक्ट की जो बात बोल रहे हो ना आपकी, आपके बोली से नहीं लगता कि आप बिहारी है, वो एग्जैक्टली वो बिहारी ही डायलेक्ट नहीं है, वो एक्चुअली उस रीजन का, वो बंगाल और बिहार में सब में ऐसे ही बोलते हैं। वो जेंडर का बड़ा वो प्रॉब्लम रहता है। चाय मतलब क्या चाय पी जाती है, पिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं ना। चाय खाबो, चाय खाबो, चाय खाबो, चाय खाबो। तो हम लोग भी सब चीज़ को वो मेल उससे ही एड्रेस करते हैं। हाफ ऑफ बंगाली ऑल्सो। अच्छा हाफ ऑफ बंगाली, गुड। हाँ तुम किधर जाता है? ट्रेन आता है, ट्रेन आता है कि आती है? तुम क्या करता है? या एनीथिंग एल्स? हाँ या मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर बोल रहे मैं सर टीचर की तरफ भी। I have kind of a very generic question. हाँ। I'm sure आपसे all the time पूछा जाता है, but as a independent journalist working on your own, where do you cross the line or where do you draw the line कि जो मैं report कर रहा हूँ it's controversial enough or it can make the people angry enough कि it can put me in serious harm? Where do you draw the line कि no, this I cannot report or this I cannot write about? नहीं ऐसा नहीं How है। do you Story decide has that? to be factually correct. That's it. No, that is the only even if mantra. the story is factually correct, Yeah. but it's controversial enough to make a group of people or anyone angry. Like I'm sure you've heard all the time, you know, some person got way too close to a conspiracy or some deeper story, especially investigative journalists, and then they are obviously in danger or are harmed. So can you tell me Stories anything that about make somebody uncomfortable. Right. Actually. So what can you tell me about that? How do you decide something is too dangerous, and if it is, what do you do? Nothing is dangerous. Story has to be good. Story has to be factually correct. It has to expose something. And Right, but- criticism, as one of my editor once said, criticism is a badge of honors for journalists. No, criticism is fine, but how do you decide if a story is dangerous? Dangerous? Yes. Like you see a lot of journalists getting threatened. Like just the other day we had Ashok Srivastava. He told us about, you know, the time he got kidnapped, the time he got held up at gunpoint. So how do you avoid situations like that? I don't know if that's the right question. No, I don't know. I have not been in that situation ever, so I cannot tell about that कि मुझे gun point पे कभी किसी ने वो किया हो. But yeah, you have to be honest and you have to be fearless. That is the key. If you think the story is important or it needs to be told, it has to be told. That's it. किसी भी तरीके से. Anything else? A very generic question. In your statement, when you were explaining them about your channel, you said you don't go below the line or below the belt. Where is that belt? Because many of these content creators, they don't know where actually that belt is. One should not get very personal. Okay. एक तो वो चीज़ है, जैसे even if I have to criticize a policy of the government, so I'll criticize the policy. I will not make it personal attack on him. I will not bring in his family or somebody into this. वो सब I will not do it. I will try not to make a particular religion uncomfortable about this thing, or I will not make unnecessary statement about caste or something. वो सब I try to avoid all that. So basically, you mean it's the conscious effort of Yeah, that content exactly. creator where to stop. Yeah, exactly. You should know that. You should know that line. और वो खुद ही आता है. वो nobody teaches you कि you should cross this line or not. And of course, since I have been into this profession, so I know that. Youngsters के लिए थोड़ा सा है because they go sometimes, they cross the line. So that you should not do it. Good afternoon, sir. My name is Deepika.
And my question is that it has been a while since you are in this field. So, any habit that we should adopt as we are media students to Read do newspaper daily. anything? Okay, sir. Read newspaper daily. That is very important. That is very crucial. Okay. Okay. You have to be aware of what is happening around. Okay. So that is a habit that you should like अभी से ही बना लो. रोज सुबह उठ के चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पूरा चाट जाओ. ठीक है? Okay, sir. Okay. Anyone else? हाँ. खाली 2 ही 3 लोग सवाल पूछ रहे हैं, बाकी सब चुप हैं. क्या हुआ? सर जैसे आप लोग जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से जब भी मतलब मिलते हैं हम लोग, तो मेरा एक क्वेश्चन रहता है कि जैसे आप लोगों ने पहले से ही एज ए प्रोफेशन जर्नलिज्म को चुन लिया, क्योंकि जब मैं 8th में था तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जर्नलिज्म करूँगा, बट ये जो 12th तक मैंने अपने फैमिली वालों को इतना मनाया, क्योंकि कोई भी कन्वेंस नहीं, मान ही नहीं रहे थे कि जर्नलिज्म इसको करने देंगे, क्योंकि वो लोग एक तरीके से डरे हुए भी थे, टेरिफाइड भी थे, और मतलब इस प्रोफेशन को ज़्यादा मतलब तुमने 8th स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया था? हाँ सर. क्या सोच के डिसाइड किया था? सरदार बहुत खुश होगा. नहीं, मेरे फ्रेंड के एक फादर थे, वो जर्नलिस्ट थे. अच्छा. पर सडनली हुआ क्या था कि मतलब वो एक दिन गायब हो गए. Okay. फिर वो मिले ही नहीं, इसलिए मेरे फैमिली में ऐसा एक वो क्रिएट हो गया था कि नहीं, अगर ये जर्नलिज्म करेगा तो कुछ हो सकता है. हाँ, कुछ ये भी. थ्रेड भी होता है. So अब मेरी How many फैमिली of you know about this incident कि बिहार में शहाबुद्दीन ने किसी एक जर्नलिस्ट को मरवा दिया? You know all this thing now. These threats are also there. The problem is कि these incidents are not reported. Even most of the mainstream media channels and the big anchors, those who shout every day, every night, वो लोग इन सब stories को कभी importance नहीं देते हैं. उनके लिए ज़्यादा important यही रहता है कि इनके सर्कल में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो लोग बैठते हैं उनके अगर अगेंस्ट कोई एफआईआर हो जाए तो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया उसके बारे में लंबा चौड़ा एक लेटर लिख देगा, लेकिन दीज लोकल जर्नलिस्ट उनके बारे में कोई बात नहीं करता. हाँ बोलो. सर आपकी फैमिली मान गई थी पहले ही कि हाँ एज अ जर्नलिज्म इसे प्रोफेशन चुनने दे? हाँ, मेरे में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. या हाँ, लेकिन हाँ देखो बहुत लोग तो क्या होता है ना, ये ग्लैमर के चक्कर में आ जाते हैं कि सबको लगता है कि ये माइक पकड़ के टीवी पे सामने दिखेंगे, दैट इज जर्नलिज्म. दैट इज नॉट जर्नलिज्म. अगर जर्नलिस्ट बनना है तो बहुत पढ़ना पड़ता है. और सर मेरे तो कितने रिलेटिव्स हैं जो जर्नलिज्म को मतलब इस तरीके से ले रहे हैं कि रिपोर्टर्स मार खाने के लिए होते हैं. वो होते कोई हैं. थप्पड़ मार देगा, कोई जूते मार देगा, पर इसमें क्यों जा रहे हो कि कोई भी आते जाते तुम्हें मार के चला जाएगा, घंटे जैसा बजा देंगे कोई भी. सब ऐसा मतलब बोल रहे थे, पर लेकिन एंड टाइम में 12th के बाद मतलब मेरे भैया ने सपोर्ट कर दिया कि ठीक है जो करना है करो. नहीं वो होता है, वो रिस्क होता है, और यू हैव टू डील विथ ऑल दिस सिचुएशंस. आप और उस वक्त जब आप थप्पड़ खा रहे हो ना, तो आपके अंदर का इंडिविजुअल नहीं बाहर निकल सकता, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग अ चैनल. ठीक है, तो ये नहीं कि तुमने मुझे मारा तो मैं भी लगा मारने. आप मार खाओ. आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. या हाँ, और कुछ? हाँ. सर व्हाट द हैबिट्स और रूटीन यू फॉलो, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, आप वहाँ पे भी अपना काम कर रहे हैं प्रॉपरली, और आप एज जर्नलिस्ट भी काम कर रहे हैं, तो आप कैसे बैलेंस कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ? अब आदत हो गई है. आदत कैसे हुई? नहीं सी, सोशल मीडिया पे रील बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. इफ़ आई नो व्हाट इज़ गोइंग अराउंड, अभी जैसे अभी लेटेस्ट जो मैंने बनाया था चाइनीज़ वो लाइट वाला, हाँ एग्जैक्टली. तो क्या है, बस मुझे पता चला कि हाँ भाई मोदी हैज़ मेट चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग, और उसके बाद यहाँ पे इंडिया में सब लोग खुश हैं. अब क्यों खुश हैं? कुछ दिन पहले आप ट्रम्प का गुणगान कर रहे थे, अब अचानक से आप जिनपिंग का गुणगान कर रहे हो. सो ऑल दोज प्रो मोदी जितने भी मोदी सपोर्टर्स थे वो कुछ दिन पहले चाइना को गाली दे रहे थे, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट कर रहे थे. अभी अचानक से आपको चाइना के प्रोडक्ट को खरीदने की नौबत आ जाएगी क्योंकि अब हमारी चाइना के साथ दोस्ती हो गई है. तो ये सब तो एक्सपीरियंस से आ जाता है. इट्स नॉट वेरी टफ फॉर मी. तो वही है, दैट इज द थिंग. एनीवन एल्स? कुछ? बड़े शांत बच्चे लोग हैं यहाँ पे. हम लोग तो अपने टाइम पे सर खा जाते थे.
हिंदी में ऐसा कंपैटिबिलिटी नहीं दिख रहा क्योंकि स्क्रिप्ट लाइनें आजकल अच्छी नहीं आती हिंदी मूवीज की। हाँ हाँ, वेब जैसे सीरीज की परम भी। सुंदरी हुई, हाँ, उसकी स्टोरी लाइन थोड़ी जब वी मेट और चेन्नई एक्सप्रेस का कंबाइंड कर लो तो बन जाएगी। या व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पेपराजीज कल्चर? पेपराजी समझते हो सब लोग? हाँ, क्या लगता है पेपराजी कल्चर जो है ये क्या है, अच्छा है बुरा है? सर एक तरीके से बुरा इंटेंशन है कि एक इन लोगों को भी अपना पैसा कमाने का जरिया है। और किसका? बॉलीवुड स्टार्स अपना फेम कमाने के लिए उन लोगों को बुला लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ। आप पहचान कौन है ऐसे वैसा। हाँ नहीं, व्हेन आई ऑल्सो स्टार्टेड ना, स्टार्टिंग में मैंने भी एक दो बार ये मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था बॉलीवुड में, और अभी भी है इनफैक्ट। बॉलीवुड रिपोर्टिंग की सबसे बुरी बात पता है क्या है? आपको इंतज़ार बहुत करना पड़ता है। ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, सब लेट लतीफ़ होते हैं, ठीक है? कोई इवेंट होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्टार्स आने वाले हैं 9 बजे, मान लो शाम को 4 बजे का इवेंट है, आप लोग पहुंच गए 3:30 में, 4 बजे का वो इवेंट स्टार्ट होने वाला है। सेलिब्रिटीज़ बीइंग सेलिब्रिटीज़, हम तो स्टार हैं, अब वो आ रहे हैं रात को 9 बजे, अब आप 4 बजे से 9 बजे वहाँ पे वेट कर रहे हो। आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस 2007 में। राहुल बोस को कौन कौन जानता है? एक्टर राहुल बोस। अनुपम खेर को कौन कौन जानता है? हाँ, सो देयर वाज अ संतोष सिवान को कौन कौन जानता है? नाम सुना है कभी भी संतोष सिवान का? इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिनेमेटोग्राफर, आप जानते होगे शायद, आपके यहाँ से, आपके यहाँ से। हाँ, तो संतोष सिवान का वो पहला डायरेक्टोरियल वेंचर था, तहान वाज द नेम ऑफ द मूवी, और वो 2007 में आई थी। तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था यहीं नोएडा में स्पाइस मॉल में। तो इवेंट वाज लाइक शेड्यूल्ड फॉर 5 PM, और हम लोग सारे जर्नलिस्ट पहुंच गए थे वहाँ पे, और क्रू आई थी रात को 10 बजे, और सारे जर्नलिस्ट बस अपना माइक लेके ऐसे ऐसे वेट कर रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और ऐसा कोई शाहरुख खान थे भी नहीं, ये लोग तो छोटे मोटे एक्टर्स थे, लेकिन इन लोग के भी भाव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बॉलीवुड रिपोर्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आप फेस कर सकते हो, तो आपको यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इनफैक्ट, ठीक है? और बताओ, विच इज़ नॉट। नहीं, मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो हम लोग भी, जैसे आप लोग भी शायद कभी कोई जाते हो किसी शोज़ में जाते हो एज एन ऑडियंस, बैठने वैठने कभी गए हो? अच्छा, अभी तो आप लोग का बैच स्टार्ट हुआ है ना, आई एम श्योर कभी किसी शो में जाओगे। तो इंडिया टीवी यूज्ड टू होस्ट सम प्रोग्राम्स, इस तरीके एंटरटेनमेंट शोज़ होते थे। उसमें राजू श्रीवास्तव, नाम सुना है राजू श्रीवास्तव का? हाँ, तो राजू श्रीवास्तव आ रहे हैं, या कोई इमरान खान आ रहा है, या कोई सेलिब्रिटी आ रहा है। अब वो लोग भी, जैसे शो होने वाला है 9 बजे, हम लोग पहुंच गए 7 बजे से ऑब्वियसली, और वो लोग आ रहे हैं 12 बजे, तो हम लोग तो झगड़ा करके बाहर निकल जाते थे कि इतना कौन वेट करेगा। फिर और प्रिंसिपल यूज्ड टू टेल अस कि ये तुमको एक्चुअली इसलिए भेजा जाता है इतना जल्दी ताकि तुम इंतज़ार करना सीखो। दैट इज़ द की। या So you will see न्यूज़ चैनल्स में हमेशा फॉर द एंटी एंड फॉर द गवर्नमेंट चीज़ें चलती है, एंड कुछ जो प्रोमिनेंट होते हैं they are speaking neutrally. So to go on that level and tell facts is very difficult, and it will be a long time taking. But you will see digital media is now evolved a lot, and it's helping everyone. But the content is very like very unorganic, and it's like the podcasters doing bhoot chudail, ये सब कुछ भी चल रहा है, and the good facts speaking like the Lallan Top, they quote the good facts only. They are also very steamed, but जो छोटे creators होते हैं with the good facts, उनकी viewership भी कम आती है, and those who are with the bhoot chudail this they have the good numbers of viewership. So how to maintain that? See, ये audience behavior है completely. इसमें it is those who are doing those who are creating actually good content, उनकी कोई गलती नहीं है, ये ऑडियंस बिहेवियर का ही प्रॉब्लम है। और इसीलिए कई बार क्या होता है ना कि ऑडियंस को वो व्यूज़ पाने के लिए हम लोग कई बार क्लिक बेटिश चीज़ें चलाते हैं, अपने हेडलाइन में डाल दिए कुछ भी डॉट 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 करके, कुछ भी ऐसा है हेडलाइन। या दैट इज़ द थिंग। सो बट उस ट्रैप में मत फंसना, ठीक है? इफ़ यू आर डूइंग गुड स्टोरीज तो फिर वही करो। ये मत सोचो कि नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी बकवास चला दो। उसी के चक्कर में बहुत सारे मेन स्ट्रीम चैनल एक टाइम पर सिर्फ सनी लियोनी ही चलाते थे।
हम लोग जब आए थे उस वक्त राखी सावंत यूज्ड टू बी द फेस. राखी सावंत एवरी डे आज तक पे आ जाती थी. प्रभु चावला, somebody who used to like interview अटल बिहारी वाजपेयी, उनके सामने राखी सावंत बैठी हुई है. मतलब इट मेक्स नो सेंस. और तो होता है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग करते हैं, बट आपको नहीं करना तो आप मत करो. ठीक है. हाँ हाय सर, मेरा नाम देवांग है जी. और मेरा एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि कुछ टाइम लॉजिकल है कि नहीं वो तो हम लोग डिसाइड करेंगे. नहीं सर है, क्योंकि इंडियन मीडिया में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कोई भी ऐसे केसेस होते हैं कि उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल होते हैं. और जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, फरवरी के टाइम पे जो IGL शो हुआ था, वो एक कॉमेडी की वजह से इतना बड़ा इशू बना दिया था. इससे भी बड़े बड़े केस है इंडिया में, लेकिन मीडिया उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता. इंडिया's got latent. अच्छा हाँ. मतलब इससे भी बड़े बड़े केस है, कॉमेडी से रिलेटेड भी बड़े बड़े केस है. उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इतना कमेंट पे उस पर इतना बड़ा केस बना देता है इंडिया में. तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, ये बात सही है. जैसा इन्होंने कहा ना कि कई बार जो अनइम्पॉर्टेंट, जो मतलब उतने इंपॉर्टेंट स्टोरीज नहीं है, उनको हम लोग एड्रेस करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज. यूट्यूब के ट्रेंड को आप लोग चेक करते हो. लोग चेक करते हैं कि यूट्यूब में अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो अब जो ट्रेंड चल रहा है उस पर कॉन्टेंट बना दो, नंबर्स आ जाएंगे. बट जर्नलिस्ट को ये नहीं करना चाहिए, है ना. सब लोग वही है ना, सब लोग आई बॉल्स हंग्री है ना. यू गॉट माई पॉइंट, कि सबको बस चाहिए कि व्यूज़ मेरे बढ़ जाए, तो उसके लिए मैं कुछ भी बना दूँ. अब वो इंडियाज़ गॉट लेटेंट उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, लोग पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट इट. इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, तो न्यूज़ चैनल भी लग गए उसमें, जो कि इनफैक्ट गलत है. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरीज आपको करनी चाहिए थी. इसीलिए कहता हूँ ना, न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है. स्टॉप वॉचिंग न्यूज़ चैनल, रीड न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर में आपको अगर इंडियाज़ गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई भी है, इफ़ देयर इज़ एन FIR अगेंस्ट समय राणा, उस समय राणा के अगेंस्ट FIR को एक छोटे से कॉलम में ख़त्म कर देंगे, उसको इलेबोरेट नहीं करेंगे, उसको फ्रंट पेज का पूरा पेज समय राणा के ऊपर नहीं भर देंगे, जो कि न्यूज़ चैनल्स करते हैं. अब इंडियाज़ गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी हो गई है, तो रणवीर अलाहाबाद या समय राणा पे आप 3 घंटे का मतलब, और एक तो दुनिया भर के एंकर्स हैं, सबके अपने अपने शोज़ हैं, और सब एक ही टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं. सुबह शाम 6 बजे चित्रा त्रिपाठी भी समय राणा पे दंगल कर रही हैं, 8 बजे अंजना ओम कश्यप भी दंगल कर रही हैं उन्हीं पे, फिर 9 बजे राहुल कंवल भी उसी पे कर रहे हैं. मतलब एक ही चीज़ को बार बार. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ इंडियन मीडिया टुडे, कि वही ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट का डिफरेंस ये लोग भूल गए. यू अंडरस्टैंड? हाँ, चीजें कैसे इंप्रूव होगी ये तो मुझे भी नहीं पता. चीजें कैसे इंप्रूव होगी आप लोग के हाथ में. आप लोग अब आ रहे हो इस इंडस्ट्री में, आप लोग चेंज करना. या यू गाइस अंडरस्टैंड ना, इन पब्लिक इंटरेस्ट और ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट राखी सावंत, इन पब्लिक इंटरेस्ट सम माइनॉरिटी स्कीम, उसका कुछ फ्रॉड, उसका स्कैम. दैट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट. गवर्नमेंट की पॉलिसी है और वो उसका बेनिफिट आम जनता को नहीं मिल रहा. इन पब्लिक इंटरेस्ट. उर्फी जावेद के होठ कैसे फूल गए? ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. हाँ. सर, इज़ इट ट्रू कि आज के टाइम पे भी पॉलिटिशियंस या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी मीडिया हाउस पे डोमिनेट करती है? बिल्कुल करती है. आपको देख के क्या लग रहा है आजकल जो माहौल है? न्यूज़ चैनल देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी पार्टी किसको डोमिनेट कर रही है. या बट व्हाट इफ, चलिए छोड़िए. अरे बोलिए. बोलिए. व्हाट इफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ गलत कर रखा हो एंड फिर भी कोई भी मीडिया हाउस वो नहीं दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा. ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर नहीं दिखा रहा तो आई एम श्योर कोई कंपल्सन होगा, है ना. बट मीडिया में, नॉट मीडिया, कोई सोशल मीडिया में वो बताइए. बात आगे जा रही है. कोई एग्जांपल बताइए. ऐसे रीसेंट केसेस, ऐसे रिसेंटली एक केस आया था, लाइक हरियाणा में एक लेडी के साथ किसी पॉलिटिशियन के बेटे ने कुछ गलत करा था एंड ऑन कैमरा उसने ये चीज़ बोली कि जो मेरा कर सकता हो कर ले, मैं इसका बेटा हूँ करके. सो वो चीज़ मीडिया हाउस पे नहीं दिखाई भी, किसी भी टीवी पे या फिर किसी भी उस पर नहीं दिखाई गई. सोशल मीडिया से बात आगे बढ़ रही थी. आजकल वैसे होता है, कई चीज़ें ना सोशल मीडिया भी डिक्टेट करती है.
चीज़ें जब वायरल हो जाती है तब लोग उस न्यूज़ के इम्पोर्टेंस को समझते हैं. सो ये एक अभी जो पिछले 10-20 साल में जो एक बड़ा बदलाव है वो आई थिंक एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया भी है. सोशल मीडिया आने से मीडिया की भी अकाउंटेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है ना. क्योंकि अभी आज के डेट में कोई एंकर अपने चैनल पे या कुछ भी डिबेट करता है और गलत, जैसे अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आप लोगों ने कितनों ने देखा था ऑपरेशन सिंदूर का कवरेज, क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया था इंडियन मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर के कवरेज को लेकर के. उसको दिखाते क्यों नहीं है फिर? दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं. आई डोंट नो, ये वाला केस मुझे नहीं पता है किस चैनल में, और मैं सारे चैनल्स फॉलो भी नहीं करता, लेकिन अगर रिपोर्ट हुआ होगा तो वो कर. और कई बार एक और चीज़, सोशल मीडिया पे कई चीज़ें वो भी होती है, फैब्रिकेटेड भी होती है, ठीक है ना. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कई बार सोशल मीडिया पे गाज़ा के वॉर के वीडियो को बता देंगे कि यहाँ लखनऊ में ऐसे झगड़ा हो रहा है ना. तो वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग एनी क्लिप. तो कई बार वो हम लोग भी चेक करते हैं कि भाई ये जो वीडियो चल रहा है वो एग्जैक्टली इसकी बैक स्टोरी क्या है. मैंने ये चीज़ बहुत मतलब ले लो लास्ट मंथ से ये चीज़ बहुत ऊपर आई हुई थी, मेरी मम्मा ने मुझे बताया, तो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में पहले न्यूज़ से ही पता करना चाहा कि आर्टिकल या फिर कोई न्यूज़ पाई होगी. एक दो बार दिखाई उन्होंने, पर उसके बाद फिर अभी जैसे राहुल गांधी की वो रुकी थी फेक वोटर्स को लेकर, उसी के बारे में वो लोग दिखा रहे थे. फिर पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड न्यूज़ इस चीज़ के बारे में लाइक रात को 11 साढ़े 11 बजे एक बार ही, उसके बाद लाइक इसको रफा दफा कर दिया. एंड आई वाज लाइक कि टाइम गया, खबर गई, एंड सपोज 2 बिग स्टोरीज हैपन एट द सेम टाइम, तो उस वक्त किस स्टोरी को ज़्यादा प्ले करना है, दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी बिग चैलेंज होता है वो चीज़. Thank you so much, sir, for this wonderful session. There is an old proverb that says that there is no banquet in this world that does not come to an end. And sadly, this session has also come to an end today. So thank you again, sir, for coming here today. And I would like to invite Ms. Garima Jain to the stage to please deliver a vote of thanks. Hello. First of all, thank you, Rashri. And my first thank you, of course, goes to Nishan ji. मैं निशान सर को नहीं जानती, एंड जिस तरह से मैं क्लासरूम में अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को कहती हूँ दैट यू नीड टू डू अ इंटरव्यू सेशन विद पीपल फ्रॉम इंस्टाग्राम, पीपल हु आर नोन और हु आर मेकिंग डिफरेंस, ये उसके लिए एक एग्जाम्पल था. दे आर नॉट वेरी हार्ड टू चेज. I just messaged him once, very humbly he accepted it. So thank you so much for being here, because I know industry से जो लोग आते हैं इतने humble तो नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते हैं. So again, thank you so much for joining us. Secondly, thank you so much for being such a wonderful audience, and I hope that you people have learned from these sessions. Thirdly, ma'am, thank you for organizing these sessions. Without your support and guidance, it would not have been possible. Faculty members, the team of production and admin, IT, thank you so much everyone for joining us today, and our next session will be on 10th, and let's enjoy that session again. And again, once again, thank you so much, Nishant, for joining us. Thank you everyone.